A very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So, hope we are ready to start. And it's already around 20 candidates. So probably we can start. I hope all of you can hear me. Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes, sir. So, good. So, I'm told that probably a lot of you have already taken admission into the online PGDM program. And some of you are probably thinking about it, right? So I thought of talking about something which is interesting. I thought of talking about something which will give you a better understanding of how businesses are changing. And I'm not trying to limit myself to any particular domain. I'm talking about businesses in general. Right. So let's start this journey. I am sure that by the end of it, you'll find this journey to be exciting, to be interesting. And this will encourage you to take a deep dive into understanding the businesses better, right? So, okay, Ayushi, I'll try to make a mix of it, okay, for better understanding. Or thank you, Samman Singh ji, for coming on a screen. It's good to see. ऐसा लगता है कि जैसे सामने बात कर रहे हैं. और अगर किसी को बहुत बैंडविड्थ इशू ना हो तो 1 घंटे के लिए आई थिंक इफ यू स्विच ऑन द वीडियो probably that will make this session more lively, right? So as I talked about, I'll be talking about something. I thought of that, let's not get into domain, let's not get into technicality, let's make it as simple as possible so that each one of you can relate to it. Or usi context mein, I thought of discussing something business as usual, right? Or rather, in these changing times, we should talk about business unusual, right? Because the pace at which these changes are happening, right? It is always making the business much more challenging, and it is also challenging the theories. Probably क्या जरूरत है बिजनेस को एक नए नजरिए से देखने की, या जो बहुत थ्योरीज पुरानी हो गई हैं क्या उनको एक बार रीलुक करने की जरूरत है, क्या जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनसे आज भी बिजनेस सक्सेसफुली चल सकते हैं. कुछ इस तरह की बात हम लोग इसमें करेंगे. So, as most of you may be aware, I'm Himanshu. I teach marketing related courses with Jaipuria Institute of Management, and it has been a quite long association. I have almost completed, say, 18 plus years with Jaipuria and more than 2 decades into academics, right? So if you, and wherever you feel like, right? So I have made it more practical, practice oriented. जहां पर आपको लगे कि आपको कुछ इनपुट देना है, just raise your hand. I'll unmute you, or probably you can unmute yourself and talk about it, right? तो देखिए बिजनेसेस में चेंज क्या हुआ कि पहले क्लासरूम कुछ ऐसे होते थे, ठीक है ना? एटलीस्ट आपने भी बहुत सारे इस तरह के या डिफरेंट थोड़ा सा सेटिंग में क्लासरूम में पढ़ा होगा. और पहले हम लोग की मीटिंग्स कुछ ऐसे होती थी, राइट? अब जो अभी हो रहा है वो क्या हो रहा है? कुछ ऐसे हो रहा है. ये चेंज है, राइट? बिजनेसेस को, एजुकेशन इंडस्ट्री को ये समझना पड़ेगा दैट हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, राइट? और अच्छी चीज क्या है, एटलीस्ट इस वाले में तो वर्चुअल में जूम पे लोगों ने फोटो भी ऑन कर रखी है. अब तो लोग फोटो भी ऑन नहीं करते, तो ऐसा लगता है एज इफ यू आर टॉकिंग टू स्क्रीन. So teaching becomes more challenging, right? Meetings become more challenging, and the time gap or the official time frame, it has gone out of the window. आपको एक मैसेज आता है कि say let's meet in next 10 minutes, let's meet in 15 minutes, and then you are starting the meeting, right? So the way businesses was being done has changed.
बहुत सारा जब बिजनेस वर्चुअल मोड पे होने लगा तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? सोचिए ना, व्हेन पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम टू ऑफिसेज तो उसका फर्क पड़ेगा रियल एस्टेट पे कहीं ना कहीं, को वर्किंग स्पेस के बिजनेस मॉडल आएंगे, राइट? देन there was an entire gamut of furniture manufacturers who started creating workspace like cubicles. तो कहीं ना कहीं this is also business. Whatever is happening around you has something or the other to do with business. जो भी आपके चारों तरफ हो रहा है उसका किसी बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? लाइक इफ यू लुक एट प्लेसेस लाइक गुड़गांव और फॉर दैट मैटर बैंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, जहां पे बहुत बड़े बड़े ऑफिस हब्स थे और एक एक बिल्डिंग में हजारों लोग काम करते थे और उनके बाहर बहुत सारे चाय वाले, बन मक्खन वाले, कॉफी वाले, पान वाले अपने स्टॉल्स लगाते थे। एंड नाउ व्हेन थिंग्स आर गोइंग वर्चुअल, राइट, और वो थाउजेंड्स की जगह कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोग आ रहे हैं डेली बेसिस पे, इट विल अफेक्ट द बिजनेस and one has to understand that how to change the or how to take the leverage of businesses, right? Then there are a lot of other things, a lot of other aspects which you can talk about it, which you can discuss about it, but I'll be posing more questions. This session may I'll give less answers, I'll pose more questions for you to think upon. इससे रिलेटेड किसी को कुछ रिसेंटली ध्यान आ रहा है क्या हो रहा है? आजकल पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, 10 मीटर पिस्टल में, राइट? अब यूजुअल तरीका क्या है? Even you will find these shooters, they will wear some earplugs ताकि noise का disturbance ना हो, glasses लगाएंगे ताकि glare ना हो, lenses लगाएंगे ताकि हम focus कर पाए. So they are trying to give utmost concentration whenever they are participating in a prestigious event like this. And then somebody came from Turkey, right? इनको पहचान रहा है कोई? आजकल बहुत वायरल है. So टर्की के 10 मीटर पिस्टल इवेंट में ही वन सिल्वर. So somebody, किसी ने कभी कहा था कि ना, अगर आप कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स में सहस्त्र बुद्धि साहब कहते हैं कि आप अगर आप सेकंड है ना तो आपको कोई याद नहीं रखता है, यू हैव टू बी फर्स्ट वेर एवर यू आर. पर शायद ये पहला बंदा होगा that people are talking more about the person who stood second and nobody is interested कि फर्स्ट कौन है. सबको पता है कि सेकंड में ये यूसुफ डाइकेच थे टर्की के, जिनको सिल्वर मेडल. And he came in a very unusual way, like normal specs, कोई गैजेट नहीं, हाथ में पिस्टल लेके आए, and he was able to get a silver medal, that too in an event like Olympics. So things are changing. बिजनेस में भी ऐसे ही होता है. जब सब कुछ एक सेट पैटर्न पे चलता है, somebody comes and they try to disrupt the entire model. And this we have seen इन दी लास्ट 1 decade. अगर पिछले एक दशक की बात करें, पिछले 10 से 15 साल में बात करें, तो बिजनेस अब एज यूजुअल नहीं रह गया है. बिजनेस इज बिकमिंग अनयूजुअली कॉम्प्लिकेटेड. You never know how what someone will do, and they will all together disrupt the market, disrupt the trend, and you are forced to think differently, right? सिर्फ एग्जाम्पल, ट्रेडिशनली बिजनेस कैसे होता था कि एक मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर से उसके पास अलग अलग रॉ मटेरियल आए, वो कुछ मैन्युफैक्चर करेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूशन में देगा, होलसेलर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, और कस्टमर तक प्रोडक्ट्स पहुंच जाते थे. बहुत सालों से बिजनेस ऐसे ही हो रहा है, that probably you are manufacturing a car, you are manufacturing a soap, you are manufacturing a detergent powder. So you're having manufacturing facilities, you are making is procurements from various vendors, you are making the product, you are packaging it, then you are transporting it to different locations जहाँ पे आपके CNF agents होते थे, distributors होते थे, wholesalers होते थे, retailers होते थे, और कंज्यूमर वहां से प्रोडक्ट परचेज कर लेता था. ठीक है. फिर अचानक क्या हुआ? फिर अचानक इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आ गए, और उन चेंजेस को समझने से पहले समझिए कि टिपिकली एक अगर बहुत बड़ी एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, तो वो कुछ इसी बिजनेस पे ऑपरेट करती थी, एंड दे यूज्ड टू बी जाइंट. आज भी जाइंट है, लेकिन 90s में 2000 तक उनकी अनडिस्प्यूटेड ऑलमोस्ट मोनोपोली थी. साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, फ्लोर क्लीनर्स हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, एंड लॉट. दे वर हैविंग अराउंड 35-40 पावर ब्रांड्स इफ यू टॉक अबाउट 2000.
आज भी इस कंपनी के पास कम से कम 19 से 20 ब्रांड ऐसे हैं जिनकी पर ईयर की सेल 1000 करोड़ से ऊपर है। लाइफ बॉय उसमें है, डव उसमें है, सनसिल्क उसमें है, आपका क्रीम वाले में आपका फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली उसमें है, आपका जो सर्फ एक्सेल है वो उस तरह का ब्रांड है। सो इट वाज अ बिग 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 ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मॉडल सिंपल था, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अलग अलग लोकेशंस पे पहुंचा रहे हो। और एचयूएल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज भी एचयूएल के साथ लाखों रिटेलर्स जुड़े हैं, which ensures that their product is available in every part of the country, every city, almost big, small, anything like that, right? कुछ उसी तरह की एक कंपनी आई आईटीसी, जो टिपिकली ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर दैट दिस वाज टिपिकली अ टोबैको कंपनी। तो जितने भी बड़े बड़े टोबैको के ब्रांड्स हैं, विल्स हो गया, गोल्ड फ्लेक हो गया, दीज आर मेड बाय आईटीसी। सो आईटीसी हैज अ परफेक्ट मोनोपोली इन दिस टोबैको प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया। 2000 के आसपास कहीं आईटीसी ने को लगा कि उसको ग्रेजुअली एफएमसीजी में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और उसका रीजन भी बड़ा ऑब्वियस था कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस इन टोबैको मार्केट दे वर इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट के जो कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स थे, दे वर एवरी ईयर गवर्नमेंट वाज मेकिंग देम मोर स्ट्रिंजेंट। सो आईटीसी थॉट दैट लेट्स डाइवर्सिफाई इनटू एफएमसीजी सेगमेंट। और एफएमसीजी में आके इसने बहुत सारी कैटेगरीज में बहुत डिसरप्शन किया। बिल्कुल जो लोग सोच नहीं रहे थे कुछ वैसा हुआ। और आज उसका नतीजा क्या है कि आईटीसी के पास एक ब्रांड है बाय द नेम ऑफ आशीर्वाद, आशीर्वाद आटा। सो आशीर्वाद आटा इंडिया का नंबर 1 पैकेज्ड ब्रांड है आटे का, जिसकी सेल हर साल की सेल लगभग 8000 करोड़ के आसपास की होगी, राइट। सनफीस्ट ने जिस मार्केट में ब्रिटानिया और पार्ले जैसे बिस्किट अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, वहां पे एक सनफीस्ट जैसा ब्रांड लॉन्च किया गया। अप्रोक्सीमेट सेल सनफीस्ट की 5000 करोड़ के आसपास होगी। जिस चिप्स की मार्केट में पेप्सिको मार्केट लीडर था अपने ब्रांड लेज के साथ, वहां पे इन्होंने बिंगो ब्रांड लॉन्च किया। और इन्होंने मार्केट के हर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर को सोचने पे मजबूर किया। इंडिया में आप कोई दूसरा ब्रांड बताइए जो मैगी के सामने इतने सालों तक खड़ा रहे, डटा रहे, जितने सालों से बिंगो, जितने सालों से yippee डटा हुआ है, राइट। तो ये एक ऐसा ऐसा प्लेयर आया जिसने सारी इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया, अलग अलग सेक्टर्स को, फूड सेक्टर्स में, बिस्किट्स में, आटे में, कॉन्फेक्शनरी में इन्होंने थोड़ा डिसरप्शन लाया, राइट। एक और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बता सकता है ये सारे ब्रांड्स किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं? तो बिजनेस में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना विजन है, एक अपना जुनून है। ये सारे ब्रांड्स इंडिया में कौन सेल करता है? एनी गेसेस? Yeah, you can type, you can write whatever you wish to, whatever you find to be suitable. Yeah. ये सारे ब्रांड्स इंडिया में रैकेट एक कंपनी है वो सेल करती है। और अगर आप इसको देखेंगे तो रैकेट का बेसिकली जो आप अगर समझें तो रैकेट उसी कैटेगरी में जाती है जहां पे उसको लगता है कि वो मार्केट लीडर हो सकती है, राइट। रैकेट की कंपनी की फिलॉसफी एकदम सिंपल है, that I would like to go into those brands only where I will be able to make sure that I am amongst the top 3 brands. Dettol अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है, वीट अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है, वैनिश अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है, हार्पिक अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर, राइट। तो ये जो अलग अलग कंपनीज की फिलॉसफीज हैं, ये जो अलग अलग कंपनीज का एक पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स मैनेजिंग बिजनेस, दिस हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन अ बेटर वे, राइट। So there are a lot of examples similar to this, wherein you will find that this helps us in understanding the businesses, right? So if it is a brand from Reckitt, हम लोग को थोड़ा समझ में आता है कि ये कंपनी क्या कर सकती है। If it is a brand from HUL, हम लोग को लगता है कि हाँ ठीक है, now this is what probably this brand can do, right? Then if you look at some more examples,
Any guesses for which company owns all these brands? Fog, White Tone, Glamour. ये भी एक परफेक्ट डिसरप्शन था. एक छोटी सी कंपनी आई बाय द नेम ऑफ विनी फार्मास्यूटिकल्स. विनी फार्मास्यूटिकल्स ने पिछले 5-6 सालों में ये कुछ ब्रांड्स इंडिया में लॉन्च किए. और आप लोगों ने टीवी पे तो ऐड देखा ही होगा कि आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है. और फॉग जैसे ब्रांड ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एक्स जैसे ब्रांड को मार्केट की लीडरशिप पोजीशन से हटाया. एंड करेंटली दिस इज द नंबर 1 डिओड्रेंट इन इंडिया. और ये किसी बहुत बड़े ने नहीं किया. जैसे मैं बोला ना, वो आप तो बहुत बड़ी तैयारी के साथ आए हुए थे और एक कोई बंदा आया यूसुफ डैकिच जैसा और सिल्वर मेडल लेके चला गया. ये तो सिल्वर नहीं, यहाँ तो फॉग ने गोल्ड मेडल लिया. और छीन के लिया. किससे छीन के लिया? अ कंपनी लाइक एचयूएल. एचयूएल का टर्नओवर लगभग 60,000 करोड़ के आसपास इस साल का होगा. विनी फार्मास्यूटिकल का टर्नओवर बहुत होगा तो 5,000 करोड़ के आसपास होगा, 6,000 करोड़ के आसपास होगा. इट्स अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, राइट. लेकिन जो इसके ओनर है दर्शन पटेल साहब, सो दर्शन पटेल साहब को इंडियन कंज्यूमर्स की बहुत अच्छी समझ है. उन्होंने एक क्रीम लॉन्च करी, ग्लैम अप, मार्केट में अच्छा कर रही है. अभी रिसेंटली उन्होंने ये प्रीटी 24 लॉन्च करी क्रीम, विच इज ऑल्सो अ गुड क्रीम. तो इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में बनाए और ऐसी ऐसी मार्केट में बनाए जहां पे एचयूएल की मार्केट लीडरशिप पोजीशन थी या किसी और बड़े ब्रांड का प्रोमिनेंस था. और पटेल साहब की कहानी सिर्फ विनी से शुरू नहीं हुई. इफ यू लुक एट दिस, तो ये कुछ ऐसे ब्रांड थे जो पटेल साहब की कंपनी ने खड़े किए इंडिया में. तो पटेल साहब ने जो एक्चुअल कंपनी बनाई थी लगभग मिड 90s में, उसका नाम था पारस फार्मास्यूटिकल. पारस फार्मास्यूटिकल ने इंडिया को ये इतने सारे सक्सेसफुल ब्रांड्स दिए हैं. मूव, जो नंबर 1 इंडिया का पेन स्पेशलिस्ट. रिंग गार्ड, नंबर 1 रिंग के लिए ऑइंटमेंट. क्रैक क्रीम, पट्टी अड़ियों के लिए नंबर 1 ब्रांड. डर्मीकूल, वो ब्रांड जिसने नाइसिल को नंबर 1 से नंबर 2 बनाया. बोरोसॉफ्ट, वो ब्रांड जिसने बोरोलीन की मार्केट लीडरशिप को चैलेंज किया. इनका जो आपका एक ब्रांड है, दिस इज बाय द नेम ऑफ लिवॉन. लिवॉन जैसा ब्रांड इंडिया में कभी था ही नहीं. क्या वैसा प्रोडक्ट ही कभी नहीं था, विच वॉज फॉर स्पेशली लॉन्ग हेयर्स. एंड व्हेन यू आर वॉशिंग दोज लॉन्ग हेयर्स तो वो उलझ रहे हैं, उनकी समस्या का निजात था. तो दर्शन पटेल साहब ने इंडिया में, दर्शन पटेल छोटी सी कंपनी खोली पारस फार्मास्यूटिकल के नाम से. लेकिन ऐसे धमाकेदार ब्रांड इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जिससे कभी नाइसिल जैसे ब्रांड्स को तकलीफ हुई, कभी बोरोलीन जैसे ब्रांड्स को तकलीफ हुई. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो नंबर 1 थे अपनी कैटेगरी में, उनको लीडरशिप पोजीशन से हटाया. इस कंपनी को लगभग आज से 10 साल पहले रैकेट ने एक्वायर किया 3200 करोड़ में. तो यानी दर्शन पटेल साहब को 3200 करोड़ मिले. दर्शन पटेल और उनके भाई उस टाइम पे उस कंपनी को चलाते थे. और उसी पैसे से शायद बाद में दर्शन पटेल ने अपने शेयर से विनी फार्मास्यूटिकल लॉन्च करी और उसके अंदर भी ये फॉग जैसे ब्रांड्स क्रिएट कर दिए, राइट. तो जब हम अलग अलग कंपनीज की फिलोसफीज को समझते हैं, देन द लर्निंग इज ऑटोमेटिकली डिफरेंट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेसेस, राइट. ये कुछ ब्रांड्स हैं जो पेप्सिको के हैं. अब इन सब ट्रेडिशनल मॉडल को किसने डिसरप्ट किया? इंडिया में आजकल बहुत बात होती है D2C कंपनीज की, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स. तो हमने बोला पहले मॉडल ट्रेडिशनल वाला क्या होता था? आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, आपने स्टेट्स में अलग अलग पूरे कंट्री में उसको अपने CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स के माध्यम से कंज्यूमर्स तक पहुंचा दिया. आज से लगभग 15 साल पहले किसी ने यह ट्राई किया दैट देयर हैज टू बी आई वांट टू सेल दीज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. हम रिटेलर के चैनल के थ्रू नहीं जाएंगे, बिकॉज जितने आपके चैनल पार्टनर्स होंगे आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही हाई हो सकती है. एंड देन इफ यू आर अ न्यू ब्रांड, नोबडी इज विलिंग टू कीप यू. आपने कोई एक नया बहुत अच्छा ब्रांड भी बनाया, आप रिटेलर के पास उसको लेकर के जाओगे तो रिटेलर उसको जल्दी रखने के लिए तैयार नहीं होगा. और उसी चीज का फायदा उठाते हुए
इंडिया में बढ़ते हुए इंटरनेट, स्मार्टफोन्स को फायदा उठाते हुए कुछ कंपनियों ने लॉन्च किए अपने मॉडल्स, जिसको बोलते हैं D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। आप वेबसाइट से मेरी साइट पे आओ, मेरा प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज करो। और ये इंडिया के कुछ बहुत सक्सेसफुल D2C ब्रांड्स हैं। इंडिया में आज की डेट में कम से कम 50-100 D2C ब्रांड्स एक्टिव हैं, जिनमें सबकी अलग अलग लेवल की सक्सेस है। दीज आर सम ऑफ द ब्रांड्स विच आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, राइट? Which may be Lenskart, Flatheads, MyGlam, Sleepy Owl, Noise, Healthcart, Country Delight, Licious and so on। और ये उनका कुछ कुछ मार्केट साइज है, कौन सा ब्रांड किस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक्टिव है। तो आपने शुगर कॉस्मेटिक्स का नाम सुना, मामाअर्थ सुना, ये सारे कॉस्मेटिक्स में ज्यादा एक्टिव है। बोट हो गया, नॉइज हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा एक्टिव है, राइट? तो इन लोगों ने जिस तरह से बिजनेस 2010 तक होता था, 2010 के बाद इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। और इस सारे चेंज का क्रेडिट सिर्फ एक आदमी को जाता है। वो आदमी, इसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं? लाइक whenever the doctor was recommending any kind of test, हम लोग क्या करते थे, इसी कुछ ऐसे ही दिखने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे जाते थे और अपने डिजायर्ड टेस्ट कराते थे। इंडिया के कई छोटे शहरों में 2000 से पहले कुछ ऐसे टेस्ट भी होते थे कि जहाँ के लिए पेशेंट को दूसरे शहर, बड़े शहरों में जाना पड़ता था वो टेस्ट कराने के लिए, राइट? आज की डेट में अनयूजुअल क्या हो गया, आज की डेट में डिसरप्शन क्या हो गया? आपको टेस्ट कराना है, कम से कम इंडिया में 15 से 20 ऐसे प्लेयर्स हैं, राइट? हेल्थियन हो गया, टाटा वालों का 1mg हो गया, डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गया, थायरोकेयर हो गया, एसआरएल डायग्नोस्टिक हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया, न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स हो गया। यू जस्ट हैव टू पुट अ इंक्वायरी दैट दिस टेस्ट नीड्स टू बी डन। आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, आपका सैंपल कलेक्शन हो जाएगा, रिपोर्ट आपसे शेयर हो जाएगी, और प्राइसेस भी ट्रेडिशनल जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनसे कम होंगे, क्योंकि आप वॉल्यूम में ऑपरेट कर रहे हो। तो जितने भी लोगों के छोटे छोटे डायग्नोस्टिक्स थे, उनके लिए चैलेंजेस आए। और इन बड़े डायग्नोस्टिक्स मॉडल ने क्या किया, इन्होंने कंज्यूमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड किया, इन्होंने कंज्यूमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करी कि आप खुद सेलेक्ट कर लो कि वो सैंपल कलेक्ट करने आपके पास कितने बजे आएगा। इन्होंने कंज्यूमर्स को वो ट्रस्ट दिया कि जो मेरी लैब्स हैं वो लेटेस्ट मशीन से इक्विप्ड हैं, मेरे टेस्ट, मेरे जो आउटकम्स हैं वो ज्यादा रिलायबल है, राइट? तो इन्होंने पूरी इस डायग्नोस्टिक की मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। और आज अगर आप अंदाजा भी लगाना चाहें कि इंडिया में ये लोग डेली कितने टेस्ट कर रहे होंगे, देन दिस नंबर विल बी इन फ्यू लैक्स डेली, ऑन डेली बेसिस। कि इवन अगर डॉक्टर पैथ लैब है तो डॉक्टर पैथ लैब एक दिन में पूरे इंडिया में कई लाख लोगों के टेस्ट कर रहा होगा। एंड दे आर नॉट अलोन, देयर आर 20 अदर प्लेयर्स। सो कम से कम हो सकता है इंडिया में डेली 15 लाख 20 लाख लोग किसी न किसी चीज का टेस्ट करा रहे हैं। एंड दिस इज नॉट इनफ। In times to come, probably you will find more changes, you will witness more challenges कि अब पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन्स भी आ रही हैं, पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स भी आ रही हैं, कि हो सकता है हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट के लिए भी कहीं जाना ना पड़े, एंड आई कैन बुक दैट सर्विस सिटिंग फ्रॉम होम। सो दैट इज हाउ प्रोबेबली बिजनेसेस आर इवॉल्विंग। और कहीं थायरोकेयर जैसी कंपनियों ने ये देखा कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, so let's try to create a model through which I will be able to do few millions of tests daily and will be able to generate at least some revenue, of course, and make this entire venture profitable, right? तो ये बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ इस फील्ड में। बहुत सारे लोग मेरी तरह जब आंख टेस्ट कराने जाते थे तो क्या होता था कि अब आप एक शॉप में जाते, आप एक शॉप में जाते थे, वहां पे आपका आई टेस्ट होता था, जो भी वहां पे फ्रेम्स अवेलेबल होते थे आप फ्रेम सेलेक्ट करते थे, आप ग्लासेस सेलेक्ट करते थे, और ये बिजनेस बड़ा अच्छा बूमिंग टाइप बिजनेस था। फिर उसके बाद 2009 में इस पूरी मार्केट में एक बहुत खतरनाक प्राणी की एंट्री होती है इस ब्रांड के साथ, कि जितना मासूम लग रहा है उतना मासूम टाइप है नहीं। इन्होंने पूरी इस इंडस्ट्री में डिसरप्शन ले आए। बोले देयर इज नो नीड, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, हमसे फ्रेम लो,
I will provide you the lenses, I'll provide you with best quality, I'll provide you at the best prices. And in today's scenario, in today's time, ठीक है, आपको आई टेस्ट कराना है, आप घर बैठे रहो, बस let us know, our technician, our trained technician will reach you, and they will check your eyes and they will do the needful. So what he did, he actually disrupted this entire market and forced the existing market to think about how you can match my value proposition. कि आप एक नया मॉडल बिजनेस का निकल के आया, तो वो ऑफ कोर्स जितने भी एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उनको चैलेंज करता है कि अब आप देखोगे आप कैसे बदलते हो, आप अपने आप को कैसे चेंज करते हो, आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हो, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग, आई एम क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट. ये पहला इंडिया का D2C मॉडल था विच वाज स्टार्टेड इन 2009, विच इवेंचुअली बिकेम वेरी सक्सेसफुल. और बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में D2C में इसी मॉडल को कॉपी करने की कोशिश की. राइट, सो इन वन वेज he truly brought a disruption in this particular market. Right, another example, if you look at, किसी को रेस्टोरेंट खोलना है पहले तो क्या सोचता था कि अच्छी लोकेशन में मिले, ट्रैफिक ज्यादा हो, so that I'll be able to get more footfalls, right? And then I should be able to find some good chef. किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो उसको क्या सोचना है कि हमें अच्छे शेफ मिल जाएं, किसी प्राइम लोकेशन पे बहुत रीजनेबल रेट पे हमको प्रॉपर्टी मिल जाए, so that I'm able to attract more number of customers. पिछले 10 सालों में क्या हुआ, लोगों ने कहा रेस्टोरेंट कहीं भी हो चलेगा, and that is how cloud kitchen came into existence. कोई जरूरत नहीं है बहुत पॉश एरिया में, बहुत ट्रैफिक वाले एरिया में, बहुत हाई रेंट पे जगह लेने की. एक शहर से बाहर भी हो सकता है, एक किचन के लिए स्पेस लेते हैं 2-3-4 हजार स्क्वायर फीट, एक सेंट्रलाइज्ड किचन बनाते हैं, डाइनिंग स्पेस बनाएंगे ही नहीं, एंड इसी को बिजनेस टर्मिनोलॉजी में वी स्टार्टेड कॉलिंग इट क्लाउड किचन. और लेट्स प्रोवाइड गुड क्वालिटी फूड टू द कंज्यूमर्स. किसी को आने की जरूरत नहीं है, किसी को आने की जरूरत नहीं है. लेट्स टाई अप विद जोमैटो और स्विगी, and then we'll be able to deliver the benefits. We'll be able to provide quality food to the consumers right at their doorsteps. तो अब अगर इन दोनों बिजनेस मॉडल में हमको सिलेक्ट करना है तो हमको क्या देखना है कि इफ आई एम ओपनिंग अ डाइन इन काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, तो मेरा रेंटल्स का खर्चा कितना आएगा, मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितने के हम फर्नीचर और फिक्चर्स लगाएंगे, कितनी लाइटिंग होगी, क्या होगा, और कितने कस्टमर्स को सर्व करेंगे. Vis-a-vis, if I open a cloud kitchen, then how much initial investment I'll be saving, and how much customers I'll be able to serve, right? At no point of time I'm saying that cloud kitchen is a better business as compared to a dine-in restaurant. But what I'm saying is that now both these models, they have a different operating dynamics. How much resources you have, that is up to you, which will help you in deciding that which particular model you want to go ahead with, right? There are certain advantages of having a dine-in restaurant also, but earlier, probably 10 years ago in India, nobody had thought of something like cloud kitchen, which is very, very popular in certain countries, right? जैसे चाइना में बहुत पॉपुलर है, बहुत सस्ते में आदमी को मील मिलती है. अब अगर आपको ही इंडिया में भी जो लोगों का एम्बिशन था, जो कुछ कंपनीज का एम्बिशन था, that I will be able to provide a quality meal at 80 rupees, 100 rupees, 120 rupees. अब आप सोचिए अगर आपको एक क्वालिटी मील 120, 150 की मिलने लगे, तो आने वाले 10-15 सालों में इंडिया के कई घरों से किचन ही गायब हो जाएंगे. जैसे आपके मतलब, तो खैर आप लोग काफी जितने वीडियो खुले हैं, कुछ ज्यादातर लोग यंग टाइप के दिख रहे हैं, बट इफ यू टॉक टू योर पेरेंट्स, तो पहले घरों के आर्किटेक्चर डिफरेंट होते थे. एक बीच में बरामदा होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, एंड देयर यूज्ड टू बी डिजाइन लाइक दैट, राइट? फिर स्पेस का कंस्ट्रेंट होने लगा, तो स्पेस के कंस्ट्रेंट की वजह से क्या हुआ, बरामदा गायब हो गया. अब बोले 1 BHK है, 2 BHK, 3 BHK है, 3 BHK भी 1000 स्क्वायर फीट में बना है, सो यू हैव लेस स्पेस.
Now, if you are able to get a meal at 3 meals, मान लीजिए आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लें और आपको 3 अच्छी मील मिल रही है 250 रुपए पर डे के हिसाब से, और आपके घर में 2 लोग हैं, तो आपने का टोटल खर्चा 15,000 रुपए आएगा। आप किचन बनाएं घर में, फिर एक मेड रखें और एफएमसीजी की पूरी राशन की लिस्ट मेंटेन करें, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या लगेगा, एटलीस्ट जो लोग अकेले रह रहे हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको लगेगा यार घर में किचन की जरूरत ही नहीं है, कौन बर्तन धोए, मेड भी मिलना मुश्किल है, तो पहले खाना बनाने वाली मेड हो, बर्तन धोने वाली मेड हो, उससे अच्छा है ना कि आई परचेज सम सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान, जैसे मंथली टिकट होता है ना, ईयरली टिकट होता है, बोले हमने सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है, एंड नाउ आई गेट पर्टिकुलरली आई get this kind of things at this particular price, right? So the moment this happens, this will bring all together, bring a different kind of disruption in this entire market. So one has to be very, very careful when they look at that what kind of business models might come in future. इंडिया में जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, सबके बहुत बड़े प्लान्स हैं related to cloud kitchen. They want to establish cloud kitchens because शायद जोमेटो और स्विगी से इंडियन कंज्यूमर्स के टेस्ट हैबिट्स को, फूड हैबिट्स को कोई मुझे अच्छे से नहीं समझता है। उनको सब पता है कि कौन सा इंडियन कंज्यूमर है जो मंगलवार को बिरयानी नहीं खाता है, बुध को जरूर खाता है, जो सावन में भी नॉनवेज खाता है, सावन में नॉनवेज नहीं खाता है, ये क्या परचेज करता है मंडे को, क्या परचेज करता है ट्यूसडे को। दे हैव द एंटायर हिस्ट्री एंड एज ऑन डेट मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स आर ट्रांजैक्टिंग विद देम। आपको खुद भी नहीं याद होगा कि लास्ट ईयर 15 नवंबर को आपने क्या खाया था, बट इफ यू हैव ऑर्डर्ड इट थ्रू जोमेटो और स्विगी, दे नो एग्जैक्टली दैट ऑन 15th ऑफ नवंबर आपने डिनर में इनके थ्रू क्या ऑर्डर किया। So they are working on a huge database, which again is becoming importantly very, very critically important for businesses these days. कितना डेटा है, आप कितना डेटा क्रंचिंग कर रहे हो, and how you are utilizing that data to make your businesses much more effective. So that is where Zomato and Swiggy, whenever they are coming up with any kind of communication, तो इनका communication बहुत targeted होता है। उनको पता है कि suppose you are a football fan or you are a cricket fan, उनको पता है कि जब भी कोई क्रिकेट मैच लाइव आता है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इंडिया में इतने लाख लोग हैं जो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक जरूर ऑर्डर करते हैं। So I am in a better position to predict what will happen in my businesses, and that has made this entire market much more interesting, right? Similarly, if you look at this is a very common scene whenever you go to a tourist spot, hotel, tours and travels, and so on. And the moment these players come, they came into the Indian market, they disrupted this entire market. I have to book a hotel, I have 10 options, right? I have to make an itinerary for a tourist place. I don't need to visit any tour and travel. Probably just by sitting at my home, at my leisure time, at my convenience, I can compare the options of various operators and then decide what is best for me. Right? So this has given consumers more control. This has given consumers more convenience. This has given consumers more freedom, and they feel more empowered. So these kind of models, they disrupted the way hospitality was working, and they posed challenges to the existing players to refine their offering. कोई इन दोनों को पहचानता है? बच्चे से दिखने वाले 2 बच्चे, इन्होंने कोविड के टाइम पे they had done certain things which disrupted the entire market, right? Let's look at them. आज जो आप मार्केट में ब्लिंकिट देख रहे हैं, स्विगी इंस्टामार्ट देख रहे हैं, डंजो देख रहे हैं, बिग बास्केट नाउ देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट, सारे प्लेयर्स देख रहे हैं, इसमें से स्पेशली मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे हैव स्टार्टेड समथिंग व्हिच वी नाउ कॉल एज क्विक कॉमर्स, क्विक डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी, 5 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी, राइट?
तो ब्लिंकिट आ गया, उसमें स्विगी का इंस्टामार्ट आ गया, बिग बास्केट ने एक बिग बास्केट नाउ करके कर दिया, डंजो भी उसी कैटेगरी में है, अमेजोन ने अमेजोन फ्रेश स्टार्ट कर दिया। और ये सब हुआ इन दोनों की वजह से। और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने कोविड के टाइम पे बस एक कंपनी खोली बाय द नेम ऑफ जेप्टो। और ये जेप्टो, इट स्टार्टेड डिसरप्टेड द वे द ई कॉमर्स वाज ऑपरेटिंग। और इन्होंने एक नई मार्केट खड़ी कर दी जिसको आज हम लोग बोलते हैं क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स, राइट। आदित्य और कैवल्य जो हैं, इन्होंने क्विक कॉमर्स स्टार्ट किया। और ये एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत सिर्फ एक साल में 7,000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंची। आज की डेट में इनकी कंपनी का वैल्यूएशन 3.6 बिलियन है। और अभी परसों ही इनको अराउंड $665 मिलियन की फंडिंग मिली हुई है, राइट। तो कहीं कोई आदित्य था, कहीं कोई ओयो के रितेश अग्रवाल थे, कहीं कोई लेंस कार्ड से था, कहीं कोई दर्शन पटेल जैसा था, जिसने कुछ ऐसा किया, जिसने अनयूजुअल पैटर्न्स को चैलेंज किया, and they thought of doing business in an entirely new way, in an entirely new manner, which disrupted the entire market, right? तो दर्शन पटेल ने HUL को फोर्स किया कि आपका जो नंबर वन ब्रांड है एक्स, उसको मेरा ब्रांड फॉग चैलेंज करेगा। जेप्टो जैसी बहुत छोटी सी कंपनी ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर को फोर्स किया कि आप ना मेरे हिसाब से चलो। They pose the threat to the existing players, and in fact very big players, that you need to think about, rethink the way business is done. You need to rethink your business strategy if you want to compete with us, right? And in fact these two youngsters, they changed the way the e-commerce was done, and altogether created a different segment which we now known as quick commerce, right? Hope all of you know about them. कोई शायद ऐसा नहीं होगा जो इनको ना पहचानता हो, right? Any idea how much money was spent on their marriage? I'm looking at chat. I'm looking at that somebody will unmute and tell me that how much money they are. There was spent on their marriage. Yeah, I could see something on the chat. Shreyansh, 5,000 crores. Which is true. Which is true. But what I was more interested in, that it's not about being, just 5,000 crores. That should force us to think that how big this marriage market is. क्या लगता है इंडिया में हर साल कितनी शादियां होती होंगी? मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़, ठीक है। 135 करोड़ लास्ट ऑफिशियल डेटा था, बट अब वो सेंसस हुआ 2011 में, अब तक 150 करोड़ के ऊपर ही होगी। 150 करोड़ मान लेते हैं। तो अगर 150 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, हर साल कितने लोगों की शादी होती होगी? Just any rough guesses. It's not a quiz, it's not something, but just trying to understand. कितने लोगों की शादी होती होगी हर साल इंडिया में? 5,000 करोड़ तो सिर्फ इनकी शादी में खर्च हुआ है, right? Not every marriages you spend that much money, and this is all easy to find. That is how you have to develop that business acumen, right? So if you look at हर साल इंडिया में 80 लाख से 1 करोड़ लोगों की शादी होती है, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। यूएस तो हमारे सामने कुछ नहीं है, 20 से 25 लाख शादियां वहां हर साल होती हैं। ऑफकोर्स पॉपुलेशन यूएस की हमसे बहुत कम है, और यूएस की हर शादी में जो उसकी मैरिज, पूरी मैरिज मार्केट का साइज है वो रफली 70 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं, और इसका जो मार्केट है, जो मार्केट साइज है, वो अराउंड 130 बिलियन है इंडियन वेडिंग मार्केट का, विच इज ओनली सेकेंड टू फूड ईयर्स एंड ग्रोसरी। ओनली सेकेंड टू फूड एंड ग्रोसरी। तो सोचिए ये कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया में, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हमसे ज्यादा खर्चा चाइनीज करते हैं अपनी शादियों में, 130 बिलियन उनकी मार्केट है, जबकि उनके नंबर ऑफ मैरिजेस सिर्फ 70 to 80 लाख है।
यानी कि पर मैरिज में चाइनीज हमसे ज्यादा खर्च करते हैं। अब आपसे कहा जाए कि इस बेसिस पे एक बिजनेस मॉडल बनाई है कि एक करोड़ शादी इंडिया में हर साल होती है, हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएं जो सिर्फ 10,000 शादियों की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर ले। कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इस सेक्टर में नहीं है। इस 1 करोड़ शादियों से अगर आप सिर्फ ये सोच के देखिए कि किन किन सेक्टर्स पे फर्क पड़ता होगा, तो इन 1 करोड़ शादियों से पेंट इंडस्ट्री को फायदा है, इन 1 करोड़ शादियों से फूड एंड ग्रोसरी को फायदा है, इस 1 करोड़ शादियों से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कंपनियों को फायदा है, इस 1 करोड़ शादियों से ऑटोमोबाइल यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जैसी कंपनियों को फायदा है। 1 करोड़ शादियों में अगर 20% शादियों में भी बाइक दी जा रही है, इस प्लेटफॉर्म से कोई डाउरी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बट दिस इज अ फैक्ट कि कितने लोगों को शादियों में कार मिल रही है, कितने लोगों को शादियों में 2 व्हीलर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल को फ्यूल कर रही है ना ये डिमांड। इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है, सबसे पहले बोले शादी है तो बोले उससे पहले घर भी पुतवाना है। तो क्या 1 करोड़ शादियां अगर हो रही हैं, उसमें से आधे लोगों ने भी अपना घर पुतवाया, तो 50 लाख घर पुतेंगे बिकॉज ऑफ मैरिजेस। तो ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी, राइट। एंड एज बिजनेस स्टूडेंट्स यू हैव टू थिंक ऑफ, अगर ये इतनी बड़ी मार्केट है तो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? अगर ये इतनी बड़ी मार्केट है, इससे बहुत बड़ा बिजनेस चलेगा मैरिज हॉल्स, बैंक्वेट्स और होटल्स का, जैसे सम्मान सिंह जी भी कह रहे हैं, राइट। तो आपके शहर में कितने मैरिज हॉल्स हैं? हर मैरिज हॉल साल में कितनी शादियां करता होगा? आपके शहर में कितनी शादियां होती हैं? एंड देयर आर लॉट ऑफ डिसीजन फ्रेमवर्क्स which you have to think about to understand this business, right? Then let's move ahead, and I'll show you two very another interesting dimensions of businesses, of how they work and what they do, right? Just give me a second. Yeah, I don't know how many of you have looked at this ad. Just give me a second. I think I need to share the sound also. Yeah. अब I'll tell you the history of this ad. ये एप्पल ने अभी रिलीज किया था, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले, जहां पे इन्होंने बहुत पावरफुल अपना एक, देखिए इस एड में हुआ क्या, they were just trying to communicate that this is the most powerful iPad which they have made, और आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप स्कल्पचर कर सकते हो, हर तरह की क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, और वो उन्होंने कुछ इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी, राइट। कुछ वजहों से कुछ लॉबी ने इस एड को बहुत क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसिज्म का रीजन क्या था कि उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप इस तरह से क्रिएटिविटी को डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सारे पेंट कलर्स और सारे स्कल्पचर्स ये सब ब्रेक हो रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ क्रिएटिविटी। जब सोशल मीडिया पे ये चीज ज्यादा वायरल होने लगी, तो थक हार के जो है इन्होंने, एप्पल वालों ने, दे अपोलोजाइज्ड एंड दे सेड कि yes, we apologize for this particular ad, and we feel that this is we never wanted to hurt any feelings, it was not intended in that way, but I think ये हम लोग के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, and they apologize publicly. The moment they apologize, जैसे ही उन्होंने apologize किया, वही सेटिंग है जहां पे एप्पल का एड खत्म हुआ था, राइट।
मार्केट का चैलेंज ये है, you try to do something and the moment it goes wrong, then you will find that competitor has taken the advantage. आपसे जरा सी चूक नहीं हुई, जैसे होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो एप्पल से जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और उसका पूरा पूरा फायदा उठाया सैमसंग, right? So that makes the market much more interesting, and that is the way typically how businesses are happening these days, and it has become immensely challenging, right? As we move towards the last 10 minutes of this discussion, I want you to guess what kind of brand this can be. एक brand है जो कहता है कि I will improve your immunity, right? I will provide you a better sleep. Then it says, I will give boost to your fertility. Then it says, I'll help you in aging in a healthy way. I'll give you quick energy and recovery. I'll help you in improving the digestion, improved cognition, and healthier skin. I want you to just give a guess. What do you think? What kind of brand this can be? Brand कौन सा है छोड़ दीजिए, ये किस कैटेगरी का ब्रांड हो सकता है, ये किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या लगता है आपको? ओके, आर्यन सेज FMCG, सम्मान says pharma. Okay, anyone? Look at the benefits, look at the value proposition which they are talking about. All right, and then you have to think of what kind of brand it is. Oh, Nirmalji says it's energy drink. Good, can be energy drink. कोई न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड है क्या, हेल्थ और वेलनेस का ब्रांड है क्या, पता नहीं. So lot of people for energy drink, pharma, FMCG, and so on, right? So think this may surprise a lot of you, that if I take you to this brand, and that's where the business is interesting. This is basically an apparel brand. It's an apparel brand by the name of Lambs, and they say our product, these are their products, and they're talking about EMF safety. EMF is electromagnetic frequency. So they say our products will prevent you. They are EMF radiation proof apparel. So whatever radiation you are coming across because of the usage of mobile, 4G, 5G, Wi-Fi, and so on, this is not good for your health. This is not good for your health. So you should wear those apparels which give you a EMF kind of radiation proofing, right? And somewhere in this, if you look at, you will find things which I was talking about, that what are the benefits of wearing lamp? It will improve your immunity. It will be energy plus recovery, right? Better sleep, improved cognition, healthier skin, fertility boost, healthy aging and digestion. You can look even at their prices, right? Look at what are the prices of this particular product. So even if I talk about this simple cap, this is around $69, which will be roughly 6,000, 7,000 odd rupees, right? And they have already served more than 60,000 consumers. So it's a growing brand. Now I'm not sure what kind of challenges it will pose to the other apparel manufacturer, but business wise, that makes a lot of sense, that I'm trying to come up with something
which will help the consumers in preventing themselves from electromagnetic frequency radiations. And if you go to their site and the kind of data which they talk about, scientifically backed data, after some time you will be fully convinced that yes, I also need this kind of product. But they're very sure that, I'm not making this for everyone. Probably there are certain premium customers with whom I would like to interact with, right? So they have again brought a new perspective in this entire apparel market. किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि apparel से भी ऐसा कुछ हो सकता है, right? या apparel हमको ये benefit दे सकता है. So that ways business is becoming very, very difficult to predict, right? And I think for better growth, it's important to understand what is happening around us. So as to identify the kind of opportunities which will exist in time, which will come in times to come, or which will appear in times to come, and one should be fully geared to make maximum use of those opportunities. Right? Otherwise, क्या होगा कि अगर हम टाइमली लर्निंग, टाइमली अपने आप को अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा होगा. Right? I think it was easy for anyone to guess what is happening here. बंदा काम तो कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहा है, इसी लूप में फंसा हुआ है, राइट? एंड दिस, तो एक साइकोलॉजिस्ट थे एशर के नाम से, इसको एशर स्टेयरकेस बोलते हैं. उन्होंने रिसर्च करके ये पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं who are not satisfied with the kind of job which they are doing. Probably they are working hard, वो 10 से 5 जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि somewhere I'm stuck up and I want to get out. So, probably enhancement of your education, enhancement of your learning is one way to get out of this loop. And I welcome you all to join this exciting journey of understanding businesses better, of understanding what is happening around us and what kind of future opportunities we may expect in times to come. Right? So this was business as usual, or probably as unusual. Thank you so much for being a part of it. Thank you so much for joining in this discussion. As I told you that I teach courses like marketing, and I have been associated with this institute for almost last 18 years. So I hope you enjoyed this session. I could not say that it was great interacting with you, because yes, I could see some of you were interacting on chat, 3-4 videos I can see switched on. But this is how interesting businesses can be. And once we get a knack of it, once we understand that this is what the organization, or this is how the businesses are changing, this is how the business landscape will change in times to come, it becomes easier for us to decide on our career. Like these days, people are talking about AI and what AI will do, or whether technology will kill all the jobs and so on and so forth. Nobody has a clear answer. But if I look back at the industries, wherever technology has been adopted, the number of jobs created has gone up instead of going down, right? Banking is one such example. Banking में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में जॉब खत्म हो गई, बल्कि बैंकिंग में जॉब और बढ़े. तो शायद future, what future holds for us, it's better to understand and try to face it. Jobs कहीं नहीं जाएंगे, but I believe the nature of job will change. The nature of job will change, right? Like हम लोगों ने भी जब Zoom पे पहली बार पढ़ाना शुरू किया, so we were not very comfortable. But then gradually we learned
we adopted, and then we looked at that how if I'm doing a virtual class with most of the videos off, how to keep yourself motivated and talk to the images and then try to generate some sort of engagement. Right. So I can see on the chat that a lot of you enjoyed it. So I'm happy to look at these kind of comments. And my simple advice would be just keep on learning. Just keep on learning and look at what are the changes which are happening around you and what kind of opportunities might come in future. That is the only way to grow, right? And I wish all of you the very best, and may all of you do well in whatever in your chosen field or in all the endeavors which you take in future, right? Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your time. Yeah, thank you, Rakhi ji. Thank you.